Namaskar and welcome to Samvad. Today is June the 22nd, and when I keep remembering the dates, it's very important because the rate at which geopolitics is changing on a daily basis, we need to remember as to when we are discussing something because tomorrow might be a totally different new game altogether. So we have with us Lieutenant General Raj Shukla, former GOC A-Track and member UPSC. Welcome to Samvad, sir. Thank you, Mike. अभी आप कह रहे थे ना, so I think it was Stalin who said that there are decades when nothing happens and there are weeks when decades happen. True, sir. True, This sir. is one of those weeks where decades are happening. Sir, analyzing geopolitics for people like you has become very risky business. Because what we discussed tonight might become irrelevant by the next morning. No, I'm making the contrary point. Geopolitics is changing so fast that unless you're agile and fleet-footed, you will get left out of the game. True, true. So you have to be fleet-footed. You have to be agile. Yes, sir. Sir, we'll start with the questions because we have very limited time. Sir, pehla is the question that Donald Trump, the announcement he made this morning, which took virtually everybody by surprise because he had said that for the next 2 weeks he's not going to do anything. Maybe that was a deception and we forgot to understand what deception was in this case. He announced the successful attack on Fordo, Natanz and Isfahani. I mean, very difficult to pronounce names also. Isfahan. I'm sorry, sir. I correct myself. Isfahan, Natanz or Fordo. Fordo, sir. Tino. And Fordo was supposed to be very, very solid, deep inside the ground because the Iranians had built it that way. So as a military strike, sir, as a military person, sir, first of all, we'll take the military angle. How do you rate this as a military operation? Well, from what is evident so far, 9 on 10, if not 10 on 10. You see, I'll give you a good... Abhi Pete Hegseth ne press conference ki thi about the military outcomes. So I was very glad to see, while the politician Hegseth was claiming that it had devastated the nuclear program, it was incredible, it had obliterated, मतलब एकदम पस्त कर दिया था उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को. He said it is bold and brilliant, American deterrence is back. जो उनका chairman joint chiefs था, he gave a very professional response. He said, from all accounts, it's incredibly successful, but I would like to wait for the bomb damage assessment. तो देखो बड़ा प्रोफेशनल रिस्पॉन्स है कि भाई लग रहा है कि सब कुछ बढ़िया हुआ, बट जब तक डिटेल इमेजरी वगैरह नहीं मिलती पता नहीं लगेगा. सो the distinction between the politician and the professional, and I think that's what it is. So far 9 on 10. Let the BDA come out कि भाई हुआ क्या. The key is Fordo. अगर वो हाफ मील नीचे था जमीन के और अगर वो पहाड़ी में दबा हुआ था, have these MOPs launched by the B2s, क्या उसको वो पूरी तरह से destroy कर पाए. एक बड़ी one very surprising thing, the IAEA has said कि so far there has been no uptick in radiological activity. तो अगर लगा है और सब कुछ बर्बाद हुआ है तो कुछ तो एक्टिविटी होनी चाहिए थी. ईरान ने कहा है कि भाई लगा है, but American claims exaggerated it. So for the actual thing, let's wait for a while. But 2-3 चीजें मैं कुछ कहूँ या आप कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर, आप प्लीज कैरी ऑन सर. देखिए मैं थोड़ी आपको ये जो ट्रम्प की जो ये पूरी his way of operating, you have to understand it. And from his perspective, I think it's a very remarkable success. देखिए उसने ईरान को 60-70 दिन पहले बोला कि भाई you are the largest, you are an old civilization, 90 million people. आपके पास गैस के दुनिया के सबसे सेकंड बिगेस्ट रिजर्व्स, ऑयल के थर्ड लार्जेस्ट रिजर्व्स. भाई आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए क्यों? जरूरत नहीं. एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग फ्रॉम ट्रम्प्स पर्सपेक्टिव. आपको न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए क्यों? बस मेरी आप एक शर्त मान लीजिए कि भाई बॉम्ब नहीं होगा आपके पास.
और एनरिचमेंट नहीं होगा, क्योंकि एनरिचमेंट के बहाने आप बॉम्ब बना रहे हैं। और मोस्ट एक्सपर्ट्स आल्सो से दैट between 3% enrichment which is reactor grade and 90% which is weapon grade, there is no difference. एक बार आप 3 पहुंच गए, आप 90 भी पहुंच जाएंगे। तो ईरानियंस क्या कर रहे थे, चालाकी से 3 से 90 की ओर अग्रसर हो रहे थे। ट्रंप ने पकड़ लिया, और जो इनके 4 राउंड नेगोशिएशन थे, चौथे में उसने गोल पोस्ट बदली कर ली। एंड ही सेड देखो कोई एनरिचमेंट नहीं, कोई नो रिएक्टर ग्रेड, न्यूक्लियर हो क्या, वेपन्स ग्रेड, जो 10-12 साल से ईरान बाकी सबको उलझा रहा था, जेसीपीओ वगैरह। सो ईरान हैज द राइट टू मेक न्यूक्लियर वेपन्स, इफ इजराइल हैज, व्हाई नॉट ईरान? सो दैट इज वन आर्ग्यूमेंट। बट ट्रंप ने कहा कि भाई मेरे साथ ये आप डील कि आप अगर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, यू विल बी द मोस्ट मॉस्परस कंट्री ऑन अर्थ। और जब 60 दिन खत्म हो रहे थे, ही ट्राइड हिज बेस्ट, उसने अर्दोगान के थ्रू कोई चैनल खोले, ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं पेज़ेशकियां, he was to travel to इस्तांबुल। तो एक तरफ से वो पूरी कोशिश कर रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गेट इनटू व्हाट ये फॉरएवर वॉर्स। मैं अभी 1 हफ्ता बिता के आया हूँ ईरान, यूएसए में, और वहां मागा कैंप में बड़ी फूक थी। मागा वाले कह रहे थे कि साहब कोई स्टीव बैनन और कौन है वो, मार्जोरी ग्रीन, टकर कार्लसन, वो सब कह रहे थे कि साहब देखिए वॉर नहीं, बाकी सब ठीक ठाक। सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द आर्ग्यूमेंट। देखिए द सेकंड इज दैट देयर इज अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। वो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है? देखिए कि रीजन में इजराइल, अगर आप, इफ यू आर विलिंग टू डू योर पार्ट ऑफ द डील, द कॉम्बिनेशन विद यूएस इज फैंटास्टिक। इट्स अ न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर। तो ये जुगलबंदी है नेतन्याहू के और यूएस के बीच में। रीजनल पावर्स हैव टू सी, अगर आप कुछ खुद नहीं करेंगे और यूएस से बोलेंगे सब कुछ करने को, तो यूएस भी नहीं करेगा। बट इफ यू डू योर पार्ट ऑफ द डील, जैसे उसने ईडी को ठीक किया, वो हमास वगैरह को ठीक किया, देन दिस V2 स्ट्राइक वाज वेरी इफेक्टिव। दूसरी बात, जो उनकी डोमेस्टिक डिबेट्स थी सब, देयर इज अ टर्म इन अमेरिका व्हिच इज कॉल्ड टैको, दैट ट्रम्प एक्चुअली चिकन्स आउट, अल्टीमेटली वो कुछ करता नहीं। इट वाज अ टर्म टैको। और ये जो 2 वीक का सब लोग मजाक बना रहे थे कि इसने 2 हफ्ते, कितनी बार बोला है 2 हफ्ते और कुछ हुआ नहीं। तो ट्रंप ने ये दिखा दिया है कि भाई देखो, आई मीन बिजनेस, आई मीन बिजनेस। तो एक ये नजरिया है। और दूसरा यार, मैं आपको ईरान के नजरिए से बताऊं कि अप्रैल 24 और अक्टूबर 24 पे आप पर इजराइल ने हमला किया। आपको पता था आपके S-300 वगैरह डिस्ट्रॉय हो गए। तो तब से अब आप क्या कर रहे थे? सिर्फ आइडियोलॉजी से तो देश नहीं चलता है ना। वेयर इज योर कॉम्पिटेंस? दिस इज मिलिट्री मिसमैनेजमेंट। और अगर आप में क्षमता नहीं थी, तो भाई थोड़ा सा शांति कर लेनी थी थोड़ी देर के लिए। व्हाट इज द विजडम ऑफ परसिस्टिंग विद द न्यूक्लियर प्रोग्राम इफ यू कांट प्रोटेक्ट इट? ट्रू। जब ईडी ही नहीं थी आपके पास, तो आप ये क्या मतलब, सिर्फ बोलने से तो होता नहीं है जिंगोइज्म से। तीसरी बात, चीन क्या कर रहा था? And if China does not come to the aids of its allies militarily, it will never become a big power. तो मैं ये कह रहा हूँ कि डिप्लोमेसी में ये क्लेवर बाय हाफ कुछ नहीं करेंगे, ये चलता नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू पुट योर मनी और योर गन्स वेयर योर माउथ इज। तो चीन के लिए हमको ये देखना है, जैसे आपने कहा, we'll have to go it alone। ना हमको किसी का खून मिलेगा, इट विल बी आवर ब्लड, आवर ट्रेजर। हाँ, टेक्नोलॉजी वगैरह हम ले लें किसी और से। तो व्हाट अबाउट अ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी? व्हेन पुश कम्स टू शव, भाई पार्टनरशिप की जरूरत होती। एक देखिए, रेवोल्यूशन को 46 साल हो गए, 46 इयर्स, एंड दे मेड अ वेरी डिस्टिंक्ट चॉइस कि प्रोफेशनल मिलिट्री उनको नहीं चाहिए। IRGC वाज एन आइडियोलॉजिकल मिलिट्री जो अयतुल्ला के सोच के साथ थी। ये डिफरेंस क्या होता है सर? एक इरानियन आर्मी है, एक IRGC है, सर इनमें डिफरेंस है क्या? Iranian army, because it was aligned to the Shah, so they, when the revolution came, they thought it was Shah's military. And they said they will promote only those generals who are also ideologically aligned. अब इसमें देखिए खतरात क्या है। Moment you promote an ideological military, it's good for internal suppression, but it is not good professionally. So you need a professional military which may not be so ideologically aligned with you, but it will protect the nation. Now, these are larger civil military debates.
आइडियोलॉजिकल जनरल्स तो बिल्कुल मैं आई कैन बी इजियर टू बी आइडियोलॉजिकली अलाइन में आपकी हाँ में हाँ भर दूं, बट डेवलपिंग द प्रोफेशनल कैपेसिटीज ऑफ AD मिसाइल स्ट्राइक्स एंड देयर दे हैव बीन थॉरली इनकॉम्पिटेंट। मतलब आपको ये यू आर ए 90 मिलियन नेशन, पॉपुलेशन है आपकी, सेकंड लार्जेस्ट गैस, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल, हैव यू मार्शल्ड योर रिसोर्सेज वेल? 6000 साल पुराने सिविलाइजेशन है, और एक आपको इजराइल बड़ी मतलब खुलेआम टोटल कंट्रोल ऑफ द एयर, जिस तरह से इजराइल के जहाज घूम रहे थे तेहरान के ऊपर, इट वाज लाइक एन एयर शो, योर AD वाज एब्सेंट। मतलब ये देयर आर वेरी सीरियस क्वेश्चंस, and you laid the basis of this to happen. America did not have to do the dirty work. वो जो dirty work तो इजराइल ने किया। और देखिए एक होता है ये जो बारीकियां ना, वन इज प्रेजेंस इन स्पेस, इसमें इंडिया को सीख लेनी है कि साहब हमारी इतनी सैटेलाइट्स हैं, दैट इज नॉट गुड इनफ, इट इज डोमिनेंट ISR, इट हैज टू कन्वर्ट इनटू डोमिनेंट ISR। कहा जाता है कि इजराइल को 2006 से, ये मैं आप सुनिए, आपके दर्शक इस पे गौर करें, 2006 से कोई ऐसा दिन नहीं था when Israel didn't know where Nasrullah was hiding. और इतने इंट के बाद they finally chose their moment। तो ये 23-25 साल की जद्दोजहद है जी, डोमिनेंट ISR। अरे 15 जनरलों को उन्होंने उनके बेड में मारा यार जी, नसरुल्लाह को निकाला, सुलेमानी को निकाला। These are not easy things to do। पूरा जो मिसाइल आर्सनल था हिजबुल्लाह का, उसको पहले नष्ट किया। जी, जिस तरह से उन्होंने इन्फिल्ट्रेट करके अंदर गए ईरान के, और इन्होंने वो ड्रोन्स फायर किए उनके बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, जी, दे आर मिलिटरीली दे आर रियली फैसिनेटिंग। अब ये जो मिलिट्री मिशन था उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि ये हुआ कैसे। देखिए पहले इन्होंने क्या किया, इनके पास ये B-2 बॉम्बर्स थे, और इनको पता था B-2 बॉम्बर्स और जो वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स होते हैं, 30,000 पाउंड के बॉम्ब्स which can penetrate concrete, can penetrate hills and all that। कुछ महीने पहले ये इनको डिएगो गार्सिया मूव करता है, तो लोग को लगता है कि साहब उधर से स्ट्राइक आई, फिर B-2 वापस चले जाते हैं डिएगो गार्सिया से। अब ईरान इज कंफ्यूज्ड कि डिएगो गार्सिया से वापस क्यों बुला लिया, और इनको फिर ये उलझाते हैं नेगोशिएशंस में। तो जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं, ये सारी प्लानिंग हो रही होती है, और उसी दौरान आई थिंक ही गिव्स द ग्रीन लाइट टू नेतन्याहू कि आप कर दो 60 दिन के करीब, ताकि 60 दिन के बाद उन्होंने जो वार्निंग दी थी 60 दिन अदरवाइज वी विल डू समथिंग, उसको कैसे पूरा करेंगे। फिर फ्राइडे को दे मूव अ डिकॉय टू गुआम, कुछ B-2 बॉम्बर गुआम की तरफ गए, और अमेरिका के सारे चैनल पे गुआम गुआम गुआम। असलियत क्या थी, जो मेन इनकी जो 14 B-2s की जो पैकेज था, वो मसूरी से डायरेक्ट गया ईरान की तरफ। ओके सर, डायरेक्ट। सो दैट्स अ लॉन्ग 18 जर्नी। घंटे हाँ सर, लॉन्ग जर्नी, बट 18 आवर फ्लाइट विद मल्टीपल रिफ्यूलिंग्स। ट्रम्प का एक डायरेक्शन था, ऑपरेशनल सिक्योरिटी विल नॉट बी कॉम्प्रोमाइज, और कहीं लीक नहीं हुआ। आपने देखा कि वो अंदर गए, उन्होंने मारा और वापस आए, और किसी को भनक तक नहीं लगी। तो ये 18 आवर फ्लाइट होती है, एंड वंस दे एंटर द लैंड और दे एंटर ईरान, देन दे आर लिंक्ड अप विद अ वेरी पावरफुल एस्कॉट एंड स्ट्राइक एंड स्वीप पैकेज। जो उनके अपने एयरक्राफ्ट थे, 4th जनरेशन 5th जनरेशन फाइटर्स, उनको लीड और एस्कॉट करते हैं B-2 बॉम्बर्स। और करीब 1:10 पर ईरानियन टाइम, रात को 1:10 पर ईरानियन टाइम, इनके जो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं वहां से टॉम हॉक मिसाइल्स फायर करती हैं इस्फहान पर। तो ईरानियन कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो वो गुआम की तरफ देख रहे हैं, फिर ये न्यूक्लियर सबमरीन्स यहां से, तो दे थिंक इट्स अ सी बेस्ड अटैक। तो उनकी जो भी AD, वैसे ही उनकी AD सारी पस्त हो चुकी थी, जितनी भी बची थी AD, आई थिंक इट मे हैव गॉट कंफ्यूज्ड। और उसके बाद करीब 2 बजे करीब भारी भरकम सप्रेशन फायर होता है। ये जो स्ट्राइक एस्कॉर्ट पैकेजेस हैं, 75 PGMs ऑन इस्फहान, नतांज और फोर्दो। और फिर 2:10 पे पहले 2 MOPs गिराते हैं ये
फॉर्दो पे, जो मेन पहाड़ी के अंदर था, 2 MOPs इसलिए ताकि टू क्रिएट द बेस फॉर पेनिट्रेशन, और फिर 14 MOPs तीनों जगह गिराते हैं, फॉर्दो, नतांस और इस्फहान पर। जी। तो टोटल 16 MOPs और करीब 75 PGMs और कुछ न्यूक्लियर स्ट्राइक्स वहां से। और देखिए, ये मैं बार बार कहता हूं, व्हाई इंटीग्रेशन इज सो इंपॉर्टेंट। दिस इज नॉट जस्ट सेंटकॉम, इट इज यूरोकॉम, US स्ट्रेटेजिक कमांड, US ट्रांसपोर्टेशन कमांड, स्पेस कमांड, साइबर कमांड, तो the entire US machine coming together. And so far, अभी देखना ये बाकी है कि नुकसान क्या हुआ, but militarily, in terms of force orchestration, operational security, in terms of stealth-based entry and exit, accuracy of strike, escort, I mean, it is 10 on 10. बड़ा मुश्किल है ये करना, और अमेरिका ने दोबारा बता दिया why it is the world's greatest power, because it has the greatest military. देखिए, इससे सीख क्या है कि साहब, अमेरिका, these B-2 bombers from US can go and strike any target in the world with multiple refuelings. जहां चाहें वो जाके, so this is the reach of American power. If you don't agree with them, make sure you have very solid reasons and very solid defenses not to agree with them. मतलब I'm not justifying it, but हकीकत ये है कि भाई कहीं से भी, it is this long arm of the B-2 which can hit you from anywhere. सर अच्छा, इसमें देखिए, एक मिनट, लास्ट पॉइंट जी। आसिम मुनीर का क्या इन्होंने मंकी बनाया, वहां सर लंच पे बुलाया, उनका तो सर हमारी भाषा में कहा तो उनका तो बिल फाड़ दिया सर, लंच करा करके। हाँ देखो, उसको बड़ा इंपॉर्टेंस दिया कि इफ वी डू समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड, कवर्ट ऑपरेशंस, तो आपकी मदद करेंगे, एंड नोइंग फुल्ली वेल दैट इन्होंने बहुत बार पहले किया है, ये गल्फ वॉर 2 में यमन के साथ किया था कि बुलाओ उनके हेड को और उनको ये गिव देम द रॉन्ग इंडिकेशन। तो आसिम मुनीर may have felt very great and may have also possibly leaked कि हवा से कुछ नहीं होगा, it will be ground. So it was all very carefully orchestrated. He was meant to feel great, और किया कुछ और ही एकदम। So deception, execution, precision, I mean, this is a military you can be proud of. मेरी ख्वाहिश है हमारी भी मिलिट्री कुछ इस तरह से बने एक दिन। सर मिलिटरीली सर ये पोजीशन जो है सर कि यूएस इट्स ऑफिशियली ज्वाइन द वॉर कर चुका है सर। इजराइल ईरान वापस हिट बैक कर रहा है सर, वो करेगा सर, उसको उसको अपनी प्रतिष्ठा भी रखनी है सर, देश भी बचाना है। इजराइल पे भी हिट कर रहा है सर। इजराइलीज हैव नेवर बीन हिट दिस बैडली जितना इस बार हुआ है सर उनका। ऑब्वियसली दे टेकिंग द हिट्स। वो ईरान को हिट कर रहे हैं सर। मिलिटरीली ये प्ले आउट कैसे कर रहा है पूरे रीजन में? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को सर दे हैव डिसाइडेड। बिल्कुल, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मैंने सुना जी पार्लियामेंट मजलिस ने पास किया है कि स्ट्रेट जी ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर देंगे। उसके असरात होंगे, आई एम नॉट सेइंग कुछ नहीं होगा। भाई ऑयल प्राइसेस अगर 15-20% बढ़ी, देयर बी रिसेशन। बट द पॉइंट इज, ये ईरान कहता है, करता नहीं। 1 साल हो गया यार, 1 साल हो गया कि भाई वो बेसिस को भी मार सकता है, हॉर्मुज में भी कुछ कर सकता है। इजराइल के बरखिलाफ भी देखिए, अगर आप इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे थे तो why are you stuck at 3,000 missiles? You should have some 10,000. China today is manufacturing 10,000 cruise missiles a week. और अगर आपकी क्षमता नहीं है तो थोड़ा चुप हो जाओ यार, क्षमता बनाओ पहले। 2,000 मिसाइल के साथ तो you have never been able to overwhelm the AD defenses. कुछ मिसाइल्स गई हैं 25, 30, 40, बट अगर you are fighting a war, you should have, if 200 missiles had penetrated, क्या इजराइल दोबारा करता? तो आई एम सेइंग, अगर यू वर सो श्योर ऑफ योर न्यूक्लियर प्रोग्राम, गिव इट द कवर। बट आपने फुल्ली नहीं किया। और दूसरा यार, व्हाट इज द स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद रूस अगर वो कुछ कर ही ना पाए? अच्छा चलिए, रूस तो यूक्रेन में उलझा हुआ था, चीन ने क्या किया? व्हाट इज द स्क्रिंक? चाइना, रशिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया। सर मैसेज क्या देता है सर चीन अपने ऐसे एक्शन से कि जैसे सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड है सर? तो ये मैसेजिंग क्या करता है सर? कुछ तो करता होगा। अगर उसको बड़ा पावर बनना है सर तो कुछ तो इस जरिए कि वो मदद के लिए नहीं आ रहा है सर कभी भी किसी की। इस मैसेजिंग के 3 पहलू हैं। एक पहलू ये है कि भाई वी शो ग्रेट स्ट्रेटेजिक डिसिप्लिन। उसका मतलब क्या है कि व्हाट इज इन आवर ओवरवेलमिंग नेशनल इंटरेस्ट, ताइवान, नियर अब्रॉड, उसमें हम मिलिट्रीली दखल अंदाजी करेंगे। एनीथिंग विच इज फार अवे,
एवरीथिंग बट मिलिट्री। तो एड ले लें आप हमसे, चिप्स ले लें, वो सब ले लें, लेकिन वो भी नहीं किया। यू टेल मी चाइना डजंट हैव इनफ एडी टू गिव ईरान, वही तो, वही सर। एंड एज पार्ट ऑफ द बिग पावर कंपटीशन दे शुड डू इट, हम्म otherwise you are giving a free run to USA. हम्म So I agree with the first part, but why not the second part? And the third part is just my deduction that you don't become a big power without committing yourself militarily. US has gone through it, many successes, many reverses, but they become a big power because they commit militarily. ये जो winning without fighting वाला जो सिद्धांत है चीन का, ये चलेगा नहीं. Ultimately, you have to become a big power. And the lesson for India is also this, that Sindoor is just the beginning. India will have to plot its rise amidst multiple crises, confrontations and conflicts. ये साहब की देखिए, हम external जो है, we will have a, a peaceful external periphery, a benign internal periphery, और हम तरक्की करेंगे. ये मतलब in my world of utopia, this is good. World of reality doesn't happen that way. World of reality, amidst crisis, you have to plot your rise. So, see, geopolitics is very fascinating, and geopolitics is not for the faint-hearted. It is not for the low-witted. It is high. मैं बार-बार कहता हूँ, it needs the finest brains. It needs the finest minds. It needs talent, which can think 6 steps ahead, 2 years ahead. तो मतलब और हमको यार बड़ी सीख मिल रही है, बड़ी हमको ये ऑल दिस वाइल देखिए, यूरोप में कुछ हो रहा है, वेस्ट एशिया में कुछ हो रहा है, सिंदूर ज्यादा कुछ नहीं हुआ, इट वाज नॉट अ बिग चैलेंज, वी डिड वेल, बट फॉर ग्रेवर चैलेंजेस अहेड वी नीड टू, जैसे मैं कहता हूँ, स्टेप अप आवर गेम इन नेशनल सिक्योरिटी. सर, ईरान में क्या रेजिम चेंज होता देख रहे हैं सर आप? यार रेजिम मतलब चेंज का क्या मतलब है? मान लिया आपने खमेनी को उड़ा दिया तो पेजेश्किन आ जाएगा. क्यों क्यों What do we mean by it? ये प्रश्न मैं इसलिए कर रहा हूं सर कि अगर इजराइल इतने पे ही युद्ध विराम कर देता है सर, किन्हीं कारणों से, तो सारी परिस्थितियां तो वही रही सर, एक कमजोर ईरान और डिस्टेबलाइज्ड ईरान. लेट्स लुक एट दिस रेजिम चेंज. ये कॉइनेज क्या है? तो जी, आपने सदाम इराक में रेजिम चेंज किया, क्या आया? फेलियर था, क्योस. क्योस था. क्योस. लिबिया में रेजिम चेंज किया, क्या आया? क्योस. सो लेट्स से रेजिम क्योस, डोंट से रेजिम चेंज. तालिबान में रेजिम चेंज किया, तालिबान वापस आया. सर तालिबान केम पर सर बैक. अपने सो एक प्रतिद्वंद. मिनट, एक मिनट मैं, जी, अगर आपने रेजिम चेंज करना है तो आपको ग्राउंड फोर्सेस का इस्तेमाल करना है. बिल्कुल. ग्राउंड फोर्सेस मींस इलेक्टोरल प्रॉब्लम्स. जी. इन डेमोक्रेसीज कैन नॉट सस्टेन दैट, क्योंकि भाई 4 महीने बाद बात होने लगती है, भाई क्या इतने लोग मरे, ये क्या हुआ. सो फॉर डेमोक्रेसीज टू होप फॉर रेजिम चेंज इज अ फुलिश ऑब्जेक्टिव, इट डजंट हैपन. अच्छा, दूसरा, मान लिया आप कर भी रहे, तो खामेनी साहब जाएंगे तो पेजेश्किन आ जाएंगे, बट दे आर पार्ट ऑफ द सेम रेवोल्यूशनरी आर्किटेक्चर विच हैज नाउ बीन इन पावर फॉर 50 years. वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं इतने जल्दी जाएंगे नहीं. So if at all regime change has to happen, it has to happen from within. For that, does any nation have the patience to encourage, opposing views, the opposing parties? So it's a long-term game. It doesn't happen with airstrikes, definitely. Regime change airstrikes से नहीं होगा कि साहब आपने 2 बॉम्ब डाल दिया. हाँ, फौर्दो को निकालने के लिए ठीक है. नसरुल्ला, आपने नसरुल्ला को हटा दिया, बट हिजबुल्लाह तो नहीं गया यार. इट कम बैक. Hamas is already back. आपने कितने मारे हैं? They have all got reconstituted. So military power is important, but it has to be in sync with other issues. By itself, it cannot do it. सर, मैं ईरान को भी समझने की कोशिश करता हूं सर. वो एक रिंग ऑफ फायर की बात थी सर, हमास, हिजबुल्लाह, हुथी. फिर वो 7 अक्टूबर का सर एक पाशविक, जिसको कहा है बारबरिक इन्वेजन सा होता है सर. उसके बाद ये युद्ध छिड़ता है. लगातार पिछले 15-20 सालों से हम लोग ये सुनते आए हैं कि वी विल एलिमिनेट, न्यूट्रलाइज इजराइल, विल वाइप देम फ्रॉम द फेस ऑफ द अर्थ. इस तरह की भाषा. तो अगर इनकी तैयारी नहीं थी तो इस तरह की भाषा और इस तरह के प्रॉक्सीज को लेकर के, मतलब एग्जाम्पल के लिए सर, 7 अक्टूबर के पीछे क्या सोच थे फिर? इसको समझने के लिए 7 अक्टूबर से पहले जाना पड़ेगा. एनआई से
that the brain behind this was Soleimani. वो गजब का आदमी था. सुलेमानी ने क्या कहा? सुलेमानी ने कहा कि साहब इजराइल को घेरने के लिए we will have this Hamas, Hezbollah, Houthis और सीरिया. वेरी इंपॉर्टेंट. वहां से सारा एमनिशन जा रहा था. जब तक सीरिया में असाद था, इजराइल डिडंट हैव दिस एयर पाथवे टू कम इन हिट ईरान. वहां बड़ा एडी था, रडार्स थे, ये वो. ये एक गेम प्लान था कि इजराइल की इस तरह से घेराबंदी करके रखो, और अगर कभी इजराइल हम पे डायरेक्ट हमला करता है, सी इफ हमास वाज एग्जिस्टिंग टुडे, इफ हिजबुल्लाह वाज एग्जिस्टिंग टुडे और इजराइल ने ये किया होता, तो हिजबुल्लाह की 2000 मिसाइल जाती थे तेल अवीव पे. बिल्कुल. गेम वुड हैव बीन डिफरेंट. वो पूरा जो इन्होंने जो 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 षड्यंत्र या जो खेल रचा था, वो ये था. दिस वाज ब्रिलियंट. इराक में दे गॉट फोर्सेस फेवरेबल टू ईरान. धीरे धीरे किया ये. देयरफॉर सुलेमानी वाज दैट फॉरेन पॉलिसी जीनियस. ही वाज आल्सो अ डूअर. अब यहां आपको यूएसए को मानना पड़ेगा और ट्रंप को. जब उन्होंने सुलेमानी को निकाला, they took out the brain behind this. And he was a rare charismatic general. वो जो करता कहता था, कर भी पाता था. He built up the Hamas. He built up the Hezbollah. You know, through diplomacy, personal networks, resourcing them. And he had the ear of the Ayatollah. तो सबसे पहली चोट तब लगी मेरे ख्याल से. उसके बाद से कोई ये दिखाई नहीं मेरे को. और जो दूसरा उन्होंने भाई, अगर ये आपकी 20 साल पुराना आपका प्लान था, and it was based on drones and missiles, your missile should have been in the range of 20,000, 30,000. ये थोड़ी ना कि आप राशन कर रहे हैं, जब टाइम आए 5 मारेंगे. Unless you hit 100, it will not overwhelm the defenses. अभी देखिए, पिछले हफ्ते I tell you what was the mathematical equation. I am told जो Arrow 2, Arrow 3 मिसाइल्स हैं इजराइल की, करीब 400 थी और उनके पास 2000 बची थी मिसाइल्स. Now, unless you fire 1000, you cannot overwhelm these interceptors. But उनके पास थी नहीं, तो 5-10 आप करते थे, एक निकल जाती थी कहीं से. बट जैसे इन्होंने आपके कमांडर्स को उड़ाया, मान लीजिए आप भी by this barrage of missiles you had taken out some Israeli commanders, politicians. इन पे भी होता. तो ईरान did not, in the original plan अच्छा था, उसमें इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे. And the other lesson for us is that just missiles doesn't work. So I'm saying in the Indian context, 3 things. Stealth enabled offensive air power. Without stealth, you can penetrate no air defense. फिर वही होगा BVR जैसे सिंदूर में हुआ था, 300 किलोमीटर apart. So stealth is important. Offensive air power. Along with it, drone missile force. Not either or. ईरान ने either or की गलती की. एयरफोर्स था ही नहीं. एंड द थर्ड इज एडी टोपोलॉजी. देखिए लोग क्या कहते हैं भारत के संदर्भ में कि भाई बहुत बड़ा है, क्या क्या डिफेंड करें. यू हैव नो ऑप्शन. जस्ट टेक योर माइंड बैक टू द 9th May एंड 8th May. कुड एनीबडी हैव सेड कि देखो दिल्ली तो सुरक्षित है, बट अगर जम्मू में गिरा हम कुछ नहीं करेंगे, बैंगलोर में गिरा कुछ नहीं करेंगे. तो जैसे यूएस कर रहा है वो गोल्डन डोम, नाउ दैट इज $175 billion, वी कांट अफोर्ड दैट. बट कोई $25 billion का एडी एंटरप्राइज. सर इसमें इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है सर? आप मतलब ये सारी जो चीजें हैं सर, इसमें इंटेलिजेंस का रोल, जैसे हम लोग सुन रहे हैं सर कि कल उनके एक मोसाद के एक्स डायरेक्टर ने कहा कि वी टुक अराउंड 15 to 20 years टू बिल्ड दिस कैपेबिलिटी, कि ईरान को पेनिट्रेट. तो मोसाद का सर कितना बड़ा रोल है इस, मतलब ये हमारे लिए भी सबक है, इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ. बिल्कुल सबक है. वी नीड अ थरो इंटेलिजेंस रिवैम्प. देखिए, इट इज नॉट ओनली मोसाद. Mossad, of course, has a great legacy. जी. Along with Mossad, don't forget 8200, 9300. They are youngsters who bring you these technical capacities. ये जो pagers हैं, Mossad का तो रोल है ही, youngsters ने निकाले हैं. Pagers, space. हमारे यहाँ क्या है ना यार, ये जो space cyber EW है, ये लोग they use this as jargon. हर स्पीच में डाल दो स्पेस साइबर IW और फिर करो कुछ मत, समझो भी मत जी. These are the capacities 8200. So you have cutting edge technical intelligence and legacy intelligence of Mossad. अब देखिए 8200, 9300 क्या है? It is high talent. कैसे करते हैं वहां पे वो? They go to the top colleges and schools, go and sit behind classrooms, meet principals, teachers,
और उनको बोला कि देखो मयंक जो है ना सबसे ब्राइट लड़का है, उसको ऑफर करेंगे 8200. नाउ इफ यू कम टू 8200, हमारी तरह नहीं, यू विल साइन 6 years, यू विल नॉट डू दिस, यू विल नॉट. आपको 3 साल रहना है, 4 साल रहना है, 5 साल, 3 साल के बाद आपको जाना है, हम आपको स्कॉलरशिप देंगे, जाइए आप, यू गो टू कार्नेगी मेलन, यू गो टू दिस यूनिवर्सिटी, एंड दे विल कीप कॉन्टेक्ट विद यू. और 3 साल बाद मयंक 10 दिन हमारे साथ बिताएंगे आप. नॉट लाइक अस, यहाँ नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे. दे रिस्पेक्ट टैलेंट. दैट टैलेंट हैज बीन नर्चर्ड ओवर इयर्स. उनके यहाँ स्टूपिड रेगुलेशंस नहीं है. वन ऑफ देयर बेस्ट डिफेंस स्टार्टअप्स इज बाय अ फॉर्मर एयरफोर्स चीफ इजराइल में. So here is a mind with these 8200, 9300. So they build unbelievable technologies. When I'm saying this, please इसके पे आप गौर करें कि 2006 से till Nasrullah died, there was not a day when Israel didn't know where he was. Is it so easy? It is Mossad and all this come together. जब ये पेजर वाला ऑपरेशन होता है तो एक दिन हिजबुल्लाह के एक ऑपरेटिव को एक बंदे पे शक हो जाता है. 2 घंटे के अंदर उसको उड़ा दिया जाता है एक्सीडेंट. सच डीप इन्वेस्टमेंट्स. सो 2 थिंग्स जो मैंने ये 3 चीजें बोली, इसके अलावा इंटेलिजेंस लीडिंग टू ISR डोमिनेंस. हम क्या कहते हैं, आप किसी से पूछिए, यार क्या बात कर रहे हो, हमारे पास भी तो है 50 सैटेलाइट. अगर आपके पास 50 सैटेलाइट हैं तो फिर आपने मसूद अजहर के ब्रदर इन लॉ को क्यों मारा, मसूद अजहर को क्यों नहीं मारा? कि मसूद अजहर निकल गया, मसूद अजहर. सो आई एम सेइंग दिस इन अ पॉजिटिव मैनर. चलिए इस बार आपने मसूद अजहर के ब्रदर इन लॉ को मारा है, अगली बार मसूद अजहर को निकाला जी. और जिस दिन पाकिस्तान को पता लगेगा कि आप में ये क्षमता है मसूद अजहर को निकालने की, GOC 34 को निकालने की, आसिम मुनीर साहब को निकालने के लिए, टेरर हमले बंद हो जाए. जी. जब तक आपके पास क्षमताएं नहीं है वो कहते रहेंगे, वो करते रहेंगे. सो इट इज अ नॉट ओनली मिलिट्री कैपेसिटीज बट फाइन मिलिट्री कैपेसिटीज, sophisticated military capacities. और मतलब देखो विडंबना ये है, we have the talent यार. हमारे chaps are very bright, startups, IITians, ये वो, but somehow the whole thing doesn't come together. सर एक आखिरी प्रश्न सर. प्रश्न तो बहुत सारे हैं पर कहीं ना कहीं विराम देना होता है. एक आखिरी प्रश्न. डोनाल्ड ट्रंप को लगातार हम लोग देखते आए हैं सर, वो मीम्स के भी पार्ट हो गए हैं कि वेरी अनसर्टन, वेरी इराटिक एक इमेज उभर के आ रही थी. कल के, आज सुबह के ऑपरेशन के बाद से जो डेटरेंस की बात उन्होंने कही है सर, वो डेटरेंस के दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है? देखो ट्रंप इज अ स्ट्रेंज कैरेक्टर, ही इज एन आउटलायर. ही इज नॉट दैट, क्या कहते हैं उस, एक शब्द है इंग्लिश में, व्हेन यू से व्हाट एवरीबॉडी सेज, there is a word for that in English. Conformist. He is not, Conformist. No, another word. He is not part of the larger chorus. अब देखिए larger chorus मतलब कि मैं, मयंक, जनरल हसनैन सब एक ही वाणी में बोले. बड़ी मधुर लगती है वाणी, but it is not the truth. It may not be the bitter truth. जी. Somebody told me कि ये बंदा मीठा है, वो खरा है. Now, do we want to hear the sweet voice or do we want to hear the khara voice? So that way he's an outlier. So he is not liked because he doesn't go like G7 से वो क्यों भागा? He's just getting bored. He gets bored by that common stuff. मतलब आप कह रहे हो अपना डिफेंस बजट बढ़ा नहीं रहे हो. In that sense, from the American perspective of MAGA, he's not doing a bad job. देखो क्या कहा उसने ईरान से, उसने हाथ जोड़े ईरान से, कहा देखो यार, यू हैव द सेकंड लार्जेस्ट गैस रिजर्व्स, ऑयल रिजर्व्स, आप तरक्की करो, बट न्यूक्लियर वेपन्स प्लीज. नाउ ईरान इज सॉवरेन, इट हैज अ चॉइस. अगर मेरे को न्यूक्लियर वेपन चाहिए, देन मेक श्योर यू हैव अ मिलिट्री आर्सेनल टू प्रोटेक्ट इट. रेज द कॉस्ट फॉर द मिलिट्री. और अगर नहीं चाहिए, आप सोचते हो कि भाई नहीं अभी समय नहीं है, पहले तरक्की कर लो यार, फिर कर लेना न्यूक्लियर वेपन. This business of falling into two stools, ideological, कि भाई वेपन भी चाहिए लेकिन करेंगे भी नहीं. That work stuff doesn't work with Trump. Trump is very clear. 60 days he gave. जो मागा कैंप है उसको चेतावनी दे रहा था कि देखिए साहब, नेतन्याहू आपको फंसा रहे हैं. He was very conscious of that also. So in this operation, Netanyahu was out.
But if you see from practical ways, who else can do what Netanyahu has done? उसने पहले ये सारे इनको ठीक किया, उसकी एडी ठीक की, he cleared the way for your B2s. In that sense, Trump is very commonsensical, he is pragmatic. अच्छा, he goes back also. जब देखा टैरिफ्स का नहीं चल रहा था चीन के साथ, he took 6 steps back. वो नहीं हटता है. फ्लेक्सिबल जब हूती के साथ नहीं चला, पीछे हो गया. He is not like वो पूरा, he will compromise, but next day he will come and say something. So I am saying, because he appears to be a maverick, because he appears to be unpredictable, he is a far more dangerous customer. Can you trust him like you trusted Biden? Therefore, he becomes a foreign policy challenge for the opposing country. But you don't have a choice. करना तो आपको ट्रम्प के साथ ही है. And since he is so unpredictable, अब देखो, all out of the blue he dines Asim Munir. मैं वॉशिंगटन से आ रहा हूँ, ये हमारी गलती है. आप देख लें वहां जितने भी think tanks वगैरह हैं, मीडिया है, we are absent. Asim Munir was being dined by all think tanks. Why are we absent? अच्छा, if you don't want, if the narrative doesn't affect you, then be absent. If the narrative affects you, then put people there. Yes, sir. So I'm saying, of course, Trump is not a goody boy. Trump is what he is. वो देखो, आप ट्रम्प की पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है. Trump was a New Yorker. And to the Washington elite, these New Yorkers were these lowly chaps who did real estate deals. They were never the brains. They never fashioned American foreign policy. Sir. ये वहां से वो लड़ के आया है. And he has become a challenge to Hillary Clinton and all. I'm not defending him. I'm just trying to explain it. I think it's a nice brief conversation. Yes, sir. तो बहुत यहीं पे विराम. धन्यवाद सर, यहीं पे विराम देते हैं. Thank you, man. बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार. नमस्कार. Thank you.